Okay, so in the last session, we were discussing about the very basics of Python, that how we can make use of variables in the Python, what are the basic data types of Python, and then how can we do input output, and how can we do with if else. So हमने काफी basic चीजें देखी थी, and we'll continue with that. So as you can see that ये जो था ये आपके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट प्रोग्राम का हिस्सा था कि जहाँ पर हमने ये देखा था कि इनपुट आउटपुट कैसे होता है, इफ एल्स कैसे यूज होता है. Few important things which we have studied, I will be revising on that very briefly. We have seen that in Python you did not have to specify the data type. You can directly use the variable. आप directly variable को use कर लेते हो, ठीक है. And then secondly, Python dynamically comes to know what should be the type of that variable, and accordingly it makes an object. Secondly, what we have seen कि जितने भी types है, जितने भी data types है, all are implemented in the form of classes. So for integer you have a class, for float you have a class, for string you have a class, and so on for advanced data structure like list, tuple, dictionary, and so on. Then next thing what we have seen, there is something called as immutable and mutable in Python. So your data types are mutable and immutable. अभी तक हमने जो देखा integer, सर float और string. हेलो हाँ सर, ये हाँ. यहाँ पर हम लोग ने इंट की जो क्लास डाले, तो अगर वो क्लास नहीं डालेगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ तो डिफाइन कहाँ करना पर नहीं क्लास होता है डाले ना. बेटा हमने? ये वेरिएबल वन इक्वल टू इंट की क्लास है ना, ये कहाँ पर है बताएंगे ये? वेरिएबल वन. यस यस. हाँ नहीं नहीं, ये कन्वर्जन है बेसिकली, ये हमें लगेगा. अगर हम वेरिएबल वन में डायरेक्टली वैल्यू डालते, सी ये केयरफुल, variable 1 equals to 10. Okay, so then no need to write int. Fine, I am not writing here int because this 10 is already an integer that is understood by Python. Fine, but if you say variable equals to 10.5, what Python would understand that it is a float. ठीक है, अब पाइथन यस को तो समझ में आ जाएंगे फ्लोट है, लेकिन अब मुझे बताना है कि भाई मुझे इसको फ्लोट नहीं रखना है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसी और टाइप में. I want to, for example, convert it into int. So now I am converting it. So I need to write this int because your Python is considering it to be float. Likewise, अगर आपका कोई स्पेसिफिक टाइप का डेटा आ रहा है और आपको उसको किसी और टाइप में कन्वर्ट करना है, तो आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा. यू नीड टू एक्सप्लिसिटली से that this data is coming of this specific type, but I have to convert, I need to convert it into another type. Okay, so for example, as we can see कि जो input function है, this input function will be giving us specifically a data of type string. Input function will be giving us a data of type string. Now we need to convert that string data as per our requirement. If we are scanning or if we are asking the user for the integer data, so that integer is also converted into string by the input function. अब हमको string को वापस से किस में convert करना है? Integer में. That's why we need to write here integer explicit. Otherwise there is no need to write it. Is it understood? यस सर, थैंक यू. Okay, Yes, okay, thank you. तो हाँ, तो हमने तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या लर्न करी थी कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी इन पाइथन. नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट. ये सिंपल चीज है लेकिन इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखना है कि देयर आर फ्यू डेटा टाइप्स इन पाइथन व्हिच आर म्यूटेबल एंड फ्यू आर इम्यूटेबल. म्यूटेबल मींस व्हिच कैन बी चेंज्ड, immutable means which cannot be changed. Okay, so mutable means which can be changed, immutable which cannot be changed. So your int is mutable or immutable? Yes, immutable, sir. Immutable. good. Immutable. Float is immutable or immutable? Immutable. 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 String is mutable or immutable? Immutable. Immutable, sir. Immutable. Great. ठीक है, तो अब तक हमने जो देखे फ्लोट, इंट, स्ट्रिंग, ये सब के सब क्या है? इम्यूटेबल है, दे कैन नॉट बी चेंज. इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैंने i इक्वल्स टू 10 लिखा और फिर से मैंने लिखा i इक्वल्स टू 20, तो ये i तो इम्यूटेबल है, और मैंने i इक्वल्स टू 10 लिख दिया था, इंटीजर है ये,
तो i इक्वल्स टू 20 मैं कैसे लिखूंगा, मैं तो उसको चेंज करने जा रहा हूँ। लेकिन अब क्या करता है पाइथन कि ये i अलग था और ये i अलग है, ये i के लिए मेमोरी अलग थी और ये i की मेमोरी अलग है। ओके, तो इफ यू सी द मेमोरी ऑफ दिस और द लोकेशन ऑफ दिस टू i, दे वुड बी डिफरेंट, क्योंकि आपने जैसा इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट को चेंज करने की कोशिश की, पाइथन अंडरस्टैंड्स दैट यू वांट टू हैव अ न्यू कॉपी, तो पाइथन विल डिस्कार्ड द ओल्ड कॉपी, इट विल क्रिएट अ न्यू कॉपी। So new copy will be having a new memory address, okay, new memory location, and from that only we understand कि भाई this is immutable because Python is not changing it; it is creating a new address or the new object with the same name, obviously. Then we have also seen how to have a comment in Python. A single line comment is using hash, and multi-line comment is using triple quote. So either triple single quote or triple double quote. या तो 3 डबल कोट आप ऐसे डाल दो और इसके बीच में जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो एज कमेंट, या फिर आप 3 सिंगल कोट डाल दो और उसके बीच में आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो एज अ कमेंट। ठीक है, इनके बीच में। Now, specifically, this is for multi-line constant string. I repeat, this is for multi-line constant string in Python. लेकिन इसी को हम एक्सप्लॉइट करते हैं फॉर मल्टी-लाइन कमेंटिंग। मैं वर्ड्स को गौर से सुनो। In Python, the triple quotes are used to specify multi-line constant string. What do you mean by multi-line constant string? अगर एक सिंगल लाइन की अगर constant string है, फॉर एग्जाम्पल एच टी इक्वल्स टू, मैं सिंगल कोट्स में लिख दूं AIKTC, तो ये क्या है, ये जो AIKTC है ये सिंगल लाइन कांस्टेंट स्ट्रिंग है, एक ही लाइन में इसका डेटा है। अगर मुझे मल्टी लाइन कांस्टेंट स्ट्रिंग चाहिए तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू हैव ट्रिपल कोट। ठीक है, तो ये मल्टी लाइन कांस्टेंट स्ट्रिंग हो गई, तो मैं इसमें मल्टीपल लाइन डाल सकता हूँ एंड पाइथन विल अंडरस्टैंड कि भाई ये मल्टी लाइन है। सो AIKTC इज ग्रेट प्लेस टू लर्न। ठीक है, now let's see whether we are able to get this. So ht मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हो और सबसे लास्ट में मैं यहाँ पर सॉरी print and I would say ht equals to comma ht and let me compile this code. Sorry, let me interpret this. 10. Okay. Now after this third number is greatest. अगर आप ये देखो ht equals to, तो देखो कैसे मल्टी लाइन कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग हमारी डिस्प्ले हुई है। तो AIKTC is great place to learn. Fine. So are you understanding it? कि अगर आपको मल्टी लाइन कांस्टेंट स्ट्रिंग अगर आपको पाइथन में डालना है, बताना है, तो आप ट्रिपल कोट का यूज करते हो। Now for documentation purpose, for commenting purpose, we exploit the same feature of Python. I repeat, we exploit the same feature of Python to have the comments which are multi-line comments. ठीक है, comments are nothing but constant string, you can say. So those constant strings, multi-line constant string syntax we are using for multi-line comment in Python. Is that clear to all? Okay, then keep on answering please. मल्टी-लाइन का आपको फंडा समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. Now what we'll be doing कि हमने if else यूज किया, अब हम क्या करेंगे, there is no switch case in Python. I repeat, there is no switch case in Python. ठीक है, अब switch case Python में नहीं है तो हम switch case कैसे इम्प्लीमेंट करें? Any idea? Sir, if Yes, please. If else. क्या करेंगे? if else यूज करेंगे। गुड। if else में elif भी यूज करेंगे। Yes, sir.
Yes, sir. Yes, we can make use of elif also. So what I do, mm, सर मेरा ये मल्टी लाइन वाला रन नहीं हो रहा है। क्यों बेटा, क्या एरर क्या आ रहा है? सर ट्रिपल मतलब कोड कुछ देखो एरर ही बराबर नहीं है दे क्या रहा है। आपके? ट्रिपल कोड देख लो आपके बराबर है क्या? अच्छा 3 कोड आना चाहिए, 3 सिंगल कोड या 3 डबल कोड, दोनों चलेंगे स्टार्टिंग में एंड में। अच्छा, अगर सिंगल कोड डाल रहे हो तो सिंगल कोड ही डालोगे एंड में भी, अगर डबल कोड पहले डाले तो एंड में भी डबल कोड ही डालोगे। ओके सर। देन व्हाट आई डू, सेशन 2.5, फाइन। In the last session, I also said you that in Python, we make use of block by using colon and indentation. Using colon and indentation. And by default, the indentation is done using tab space. By default, indentation is done using tab space. So basically जो tab space होती है ना, वो हमारी C++ का, you can consider its opening curly braces and closing curly braces, ठीक है? तो जैसे उसमें ब्लॉक के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस यूज होता है, यहाँ पर ब्लॉक के लिए टैब स्पेस यूज होता है। एंड लेट मी शो यू सम स्विच केस इम्प्लीमेंटेशन। कुछ स्विच केस हम लोग करके देखते हैं। एज आई सेड यू, स्विच केस इज नॉट देयर, but the same can be implemented with the help of your if else and elif. So what I will be doing, I will be displaying a menu. एक मेनू हम डिस्प्ले करते हैं और मेनू के अंदर हम काम करते हैं। So I will display a menu and I will go for 2 lines and few tab spaces, and I will say menu, and then on सर ये another एक्सपेरिमेंट line I नंबर will 1 be, का 2 है। नहीं नहीं बेटा, दिस इज नॉट टू। जो एक्सपेरिमेंट है, मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट पार्ट विल बी डूइंग इन द लैब पार्ट, ठीक है? लैब जो है वो आपकी वेडनेसडे को जो 2 घंटे की है आफ्टरनून सेशन में, और ओके ये सर। जो आफ्टरनून के पहले वाले जो सेशन है वेडनेसडे को फ्राइडे के, ये लैब के लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें लगती है हमारी, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये हम दूसरे प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आई विल बी शेयरिंग ऑल दिस कोड ऑल्सो विथ यू ऑन टू द गूगल क्लासरूम, वो भी आपको फॉलो करते रहे। So for example, my first case is suppose I am going for addition. Simple कुछ काम करते हैं add, और second case हमारा on the second line say multiply। चलो अब 2 ही करते, और थर्ड केस हम डालते हैं exit। exit तो नहीं डालेंगे क्योंकि उसके लिए फिर मुझे आपको, चलो लूप भी बता देता हूँ मैं। लेट मी हैव इट। So this is my first printing line, and then second I would say I need to ask for the choice। अब choice के लिए क्या है, input, and input में हम क्या बोलेंगे यूजर को, enter your choice, and then यूजर जो चॉइस एंटर करेगा 1 2 3 डालेगा। ये 1 2 3 का इंटीजर है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट में, और इसे हम एक वेरिएबल में ले लेंगे। फॉर एग्जांपल ch चॉइस इक्वल्स टू इंट लाइक दिस, ठीक है? ch को अलग से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है हमें। तो हमारे पास चॉइस भी आ गई। अब हमें क्या करना है, चॉइस को कंपेयर करना है कि भाई ये चॉइस 1 है तो ये काम करना है, 2 है तो ये काम करना है, 3 है तो ये काम करना है। तो आई वुड से इफ स्पेस ch इक्वल्स 1 कोलन, ठीक है? if ch डबल इक्वल्स 1 कोलन, कोलन क्यू स्टार्ट ऑफ अ ब्लॉक हमारा, और कोलन टाइप करके जैसे मैं एंटर मारता हूँ तो ऑटोमेटिकली एक टैब स्पेस से आगे होता है। it automatically shift by 1 tab space। Okay, I need not have to put the tab space there। So I come
at this point, and I would say that this is my case one. ये something like a case one. अब यहाँ पर case लिखने की जरूरत नहीं, because there is no switch case. But I am into my case one that I need to understand. So in case one, I am doing what? I am performing addition. So I would be going for say two numbers, then now one equals to, and suppose I am working on integer data. So int, and I will ask for the input. Enter first number. Fine. Likewise, I will be going for the second number. Input. सर डबल इन्वर्टेड तो कॉमर्स इनपुट हाँ, डबल हाँ, कोट जी जी, थैंक यू बेटा, थैंक यू। डालता हूँ मैं, वो देख लिया था मैंने। ऐसे ही कहाँ पर भी मिस्टेक हो तो बताते जाओ। दो नंबर हमारे पास आ गए, हमको दोनों का एडिशन डिस्प्ले करना है, सिंपल। सो आई वुड बी डायरेक्टली प्रिंटिंग addition is, and here I can say num1 plus num2. Very simple. The simple है कि थोड़ी शर्म आ रही है काम करने को, but let's see, that's what we don't want to do, but we are learning how we can make use of if else for implementing the switch case, ताकि बाद में हमारे जब मेनू बनेंगे प्रोग्राम में तो हम इसी तरीके से उसको बनाते जाएंगे। So this is my option one. Option one is done, and now I would be saying कि भाई if ch is 1, then do this. elif ch equals 2, then do something else। ठीक है, अब 2 के लिए क्या है, मल्टीप्लाई है, तो हमने क्या करना है, हमने ये सेम चीज सी, here I would say control V, and instead of this I would say multiply. Here I would say multiplication is fine। और इसके बाद में फिर मेरे पास एक ही चॉइस बचती है, विच इज माई थर्ड चॉइस। अगर मेरे पास थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑप्शन भी होता तो हम और भी एलिफ करते जाते। ठीक है, अगर थर्ड के बाद में और भी ऑप्शन होते तो एलिफ सी एच इक्वल टू 3, एलिफ सी एच इक्वल टू 4, एलिफ सी एच इक्वल टू 5 एंड सो ऑन, जितने ऑप्शन है। जब आपका लास्ट ऑप्शन आ जाता है तो आपको एलिफ करने की जरूरत नहीं, यू कैन सिंपली से एल्स, बिकॉज दैट इज द लास्ट ऑप्शन। So then you get into the else part, and here I can say this is the last option. This is last choice. Okay, done. And let us interpret our code. This is session 2। अच्छा, एक और बात कि चीज मैं आपको बताया नहीं यहाँ पर कि जो सेशन 2 है मैंने कहाँ से क्रिएट किया। मैंने इस पे क्लिक किया, आई क्लिक ऑन दिस, सो आई गॉट द एक्सप्लोरर एंड आई एम इनटू माय फोल्डर ऑलरेडी। ये जो प्रोग्राम्स का जो फोल्डर है ना, वो फोल्डर में मैं हूँ, तो आई एम क्लिकिंग ऑन दिस, so this will create a new file। फाइन, और फिर मैं वहाँ पर फाइल का नाम नाम एंटर करके आई कैन गो टू दैट फाइल। हियर इट इज अ फोल्डर, so I can create a new folder within this folder, so that I don't want to do। So I come back to my terminal, and here I would be, let's see, let's do, then I would be doing Python, and my file name is session2.py। So yes, we get a menu, a nice menu with three options. Option one is add, second option is multiply, third option is exceed। So I go for the first option, and it asks me for the number, enter the first number, I say 10, it asks me for the second number 20, and it says addition is 30, and it comes out of a program because we haven't done anything wherein it can go back to that menu। ठीक है, तो जब तक थर्ड ऑप्शन नहीं चूज होता तब तक के वो मेनू पे रहे, ऐसा हमने कुछ किया नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कमिंग आउट ऑफ अ प्रोग्राम। So if I want to go for the second option, I need to execute the code again, then I go for the second option and I say first number 10,
second number 20, and it shows me the multiplication. So multiplication is 200, and again it comes out. Likewise, if I want to go for the third option, it will display whatever we have displayed in the third option, and it will come out. So this is last choice, and it is coming out. Now if I want to make it iterable, कि भाई वो अंदर ही iterate होते रहे, and then only it should come out. So there I need to make use of what? while loop. while loop. We need to make use of a loop. ठीक है. Now in Python you have while loop, you have a for loop, while loop भी है आपके पास, for loop भी है. Now let us see how to make use of a while loop. The syntax is also same, simple, and doing ये जो है मेरा स्टार्टिंग से जो प्रिंट हो रहा है मेनू, ये सब चीजें मुझे डालना है अपने while loop में. तो I would say while and parenthesis भी डाल सकते हैं और स्पेस डाल के भी कंडीशन डाल सकते हैं. स्पेस डाल के कंडीशन डालना प्रिफर्ड है, तो स्पेस डाल के कंडीशन. क्या कंडीशन? while 1 या फिर while true, जो हम पहले डालते थे हमारे सी में, इसमें क्या डालते थे हम इस तरीके से while 1, और अब यहाँ पर पाइथन में क्या डालेंगे? कोलन डालें. कोलन डाल के हम मारेंगे. अब जो हमने एंटर मारा, नाउ सी केयरफुली, यहाँ पर ये टैब से जो भी चीजें आएगी, दैट ओनली विल बी ए पार्ट ऑफ अ while loop. अब ये प्रिंट जो है वो ये while loop का हिस्सा नहीं है, क्योंकि while का और ये प्रिंट का दोनों का जो इंडेंटेशन है वो सेम है. प्लीज सी केयरफुली, द इंडेंटेशन ऑफ प्रिंट एंड while इज सेम. ओके, सो प्रिंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ while loop. टू मेक प्रिंट एज अ पार्ट ऑफ अ while loop, तो जो while का जो इंडेंटेशन है, ये एक टैब को छोड़कर वहां पर ये सब चीजें आनी चाहिए. ओके, फॉर दैट लेट मी ट्राई दिस. पूरा चला जाएगा. मैंने पूरा सिलेक्ट किया और मैंने एक बार टेस्ट पेज दबाया, तो सबका सेम एक इंडेंटेशन से आगे बढ़ गया. ठीक है. एंड यर यहाँ पर मैं कुछ डेल मान देता हूँ, डिलीट. सो नाउ एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ माय while loop. ये जितनी भी चीजें हैं, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ माय while loop. ओके, तो while 1 और while 1 के अंदर मैंने ये काम कर दिया. और ये जो थर्ड ऑप्शन है ना, ये थर्ड ऑप्शन पे बेसिकली मुझे अपने while loop से बाहर आना है. तो व्हाट आई विल डू, आई विल से कि दिस इज लास्ट चॉइस, and after this I need to break my while loop. That's all done, nothing else. So this will break my while loop. Okay, now let's try this. So I save my code, I go to my terminal, I clear my screen, and I interpret my program. So it says again the same menu. I go for the first choice and I put up numbers 10, 20. It gives me an addition, and interestingly now it comes back to the same menu. Okay, so now I can go for the second option, and I would say 10, 20. It will give me the multiplication, and it will come back to the same loop. Okay, I can go for addition again with some other values. It gives me the addition, it comes back to the same menu. Now I go for the third option, exit, and it comes out of a program. Okay, so this is last choice, and after that it has a break statement which is breaking your infinite while loop, and after that your program does not have anything, so it come out of a program. So very simple way of implementing the loop, or exactly the while loop. For loop we will study later. For loop थोड़ा स्पेशल लूप है पाइथन के अंदर, थोड़ा उसको यूज करने का तरीका भी एकदम मस्त है. So that we'll see later. But while loop, same, no issues, and you can use this way or you can use this. Both should be permitted. Sir, या तो parentheses में वैल्यू डाल दो. हाँ बोलो. सर एक डाउट है सर. हाँ बोलो बेटा. सर यहाँ पर जो नंबर इज इक्वल्स टू इंट है सर ऊपर, सर मतलब Yes, अपने को पता कैसे? नो सर, वो इफ में जो है ना सर, इफ में कंडीशन में सर अपने को पता कैसे चला कि यहाँ पर, मतलब अगर अपने को पता नहीं कि अपने पास वैल्यू इंटीजर आने वाली है कि फ्लोट में आने वाली है, तो फिर सर उधर क्या लिखेंगे? ये ch equals to 1 जो है वो. नो सर, वो जो नंबर इज इक्वल्स टू इंट लिखा हुआ है ना सर, सर मतलब यहाँ पर तो
था कि इंटीजर वैल्यू अपन पुट करेंगे, अगर अपने को यहाँ पता पर नहीं है ये कि नंबर अपन इक्वल, हाँ इंट, हाँ सर जो ठीक, इंट लिखा हुआ है, सर अगर अपने को ओके पता ओके, नहीं है कि अपने को, हाँ ठीक है, आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। व्हाट ही इज आस्किंग दैट अगर आपको पता नहीं है कि आपको इंट लेना है कि क्या लेना है, तो आप कैसे लिखोगे यहाँ पर इंट, दैट इज द क्वेश्चन। नाउ वी आर वर्किंग ऑन दिस प्रोग्राम, we are preparing this program, so we know that on what data we are going to work। ठीक है, जब मैं एडिशन करके बता रहा हूँ तो मुझे इतना मालूम रहना चाहिए कि मैं एडिशन किसका कर रहा हूँ, इंट का कर रहा हूँ या फ्लोट का कर रहा हूँ, दैट आई नीड टू डिसाइड ऑन। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन नॉट डिसाइड ऑन माई बिहाफ, I have to decide on what kind of data I will be working. So I am performing the addition of integer data. That's why I'm writing integer. If I'm going to perform the float data, I will be writing the। ठीक है, सेकेंडली यूजर को बताने के लिए देखो दो चीज है, एक तो ये कि प्रोग्राम आपने बनाया, प्रोग्राम आपने बना के किसी यूजर को दे दिया यूज करने के लिए, अब वो यूजर आपका प्रोग्राम यूज कर रहा है। अब यूजर को क्या दिखेगा, एंटर फर्स्ट नंबर, यूजर विल ओनली एग्जीक्यूट योर कोड, यूजर विल नॉट सी द सोर्स कोड। यूजर क्या करेंगे, खाली आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, उसको आप एग्जीक्यूटेबल दे दोगे। अब यहाँ पर वो 1 डालेगा, उसको एडिशन परफॉर्म करना है। अब यहाँ पर बोला गया एंटर फर्स्ट नंबर, उसे क्या पता कि भाई इंटीजर नंबर ही डालना है, उसने उठाया डाल दिया फ्लोट नंबर 10.5, उसको फ्लोटिंग नंबर का एडिशन चाहिए। दूसरा नंबर फिर दूसरा नंबर डालने ही जा रहा था, डाला भी नहीं था, तो यहाँ पर कुछ दुम आपका एक्सेप्शन आ गया। क्या आ गया, एक्सेप्शन आ गया। जावा वाला जैसा एक्सेप्शन होता था ना, वैसा यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, बिकॉज दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नाउ यू गॉट एन एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन क्या हो गया कि भाई कि आप वैल्यू लिए हो 10.5 आपके स्ट्रिंग में, और आप बोल रहे हो क्या इसको जबरदस्ती कन्वर्ट करो इंटीजर में। ठीक है, तो इंटीजर डेटा इज एक्सपेक्टेड देयर इंस्टेड ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट डेटा, फाइन। तो व्हाट कैन बी डन, क्या ये चीज को हैंडल करने के लिए या तो आप एक्सेप्शन हैंडलिंग करो आपके कोडिंग में, जो कि हम आगे देखेंगे, लेकिन सिंपल तरीका ये हो सकता है कि आप यूजर को क्लियरली बता दो कि आप कौन सा डेटा एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो एंटर फर्स्ट नंबर, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट ऐसे नहीं लिख पाएंगे, फर्स्ट इंटीजर नंबर आई कैन से, एंटर सेकेंड इंटीजर नंबर। ठीक है, so this way with a proper presentation you are saying to the user what you are expecting from the user, you are expecting a number, but not only a number but specifically an integer number। ठीक है, likewise here also you can put in integer number, integer number। अब क्या होगा, क्या ऐसा जब आप प्रोग्राम करके तो एग्जीक्यूटेबल बना के अपने यूजर को देते हो, यूजर जब एग्जीक्यूट करता है और यूजर गोज फॉर द ऑप्शन, तो यूजर कम्स टू नो हाँ एंटर फर्स्ट इंटीजर नंबर, तब यूजर को मालूम है भाई ये इंटीजर नंबर के लिए है। ठीक है, तो इंटीजर नंबर डालेंगे। कल कोई यूजर का रिक्वायरमेंट चेंज हुआ, अरे भाई वो मुझे इंटीजर नंबर नहीं यार, मुझे वो रियल नंबर्स का भी एडिशन करना होता है, देन द यूजर विल इंटरेक्ट विथ यू, यू आर अ प्रोग्रामर, यूजर इज अ कस्टमर, so the customer will interact with you कि I need a code or I need to have a modification of this or an update of this, wherein your program is working on a float data also। ठीक है, अब देखो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, बट आई एम ट्राइंग यू टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड that how you can update or upgrade your program, right? So here the user is expected to give only the integer data, user will give the integer data, and accordingly the program will run, accordingly the program will function। okay, अगर आपको फ्लोट पे काम करना है तो आप फ्लोट पे भी काम कर सकते हो, and so on। so what is the story? हेलो सर। The story is that you should know beforehand क्या what kind of data you are going to handle। As a programmer I should know कि मैं कौन से टाइप का डेटा हैंडल करूं, and accordingly I need to handle the data। yes, there was some query। सर अगर कोई मतलब स्टूडेंट है सर और वो चाहता है कि मुझे इंटीजर या वो फ्लोट दोनों वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करना है या खाली फ्लोट को करना है, तो सर वो कैसे कर सकता है? can do, no issues, you can check the number and then you can accordingly convert it and then you can work on it, no issues, that can also be done। सर हेलो सर, ये यहाँ पर एल इफ हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एल्स इफ अगर कंप्लीट यूज करेंगे तो भी चलेगा क्या? sorry, यहाँ पे
एल इफ है ना, अगर हम लोग एल्स हाँ इफ यूज करें जैसे हम लोग प्रीवियस लैंग्वेजेस में करते वो थे भी चलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा ना? कोई दिक्कत ओके। नहीं, वो भी चलेंगे। सर एक क्वेश्चन लेकिन था। एलिफ क्या होता है, वो दोनों को कंबाइन कर लेता है ना, तो आपका काम और आसान हो जाएगा। यस यस ओके। तो ना आपको एल्स डाल के कोलन डालना पड़ेगा, या आपको एल्स के ब्लॉक में जाके इफ डालना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट आई मीन टू से कि यहाँ पर एल्स इफ अगर मुझे करना है, ये एल्स है, तो एल्स का कोलन आया, यहाँ पर मैं एंटर मार दूंगा, मैं एल्स के ब्लॉक में आया, और अब मुझे फिर इफ करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? और जो भी कंडीशन है फिर मैं कंडीशन डालूंगा। तो ये यस जो अलग अलग मल्टी ब्लॉक होता है ना, अब इसकी अगर मैं कंडीशन डालता हूँ, इफ सी एच इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 3, तो ये जो प्रिंट है अब ये इफ के अंदर आएगा, तो वहां पर और इंडेंटेशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और ये ब्रेक जो है वो ब्रेक भी फिर इसके अंदर में जाएगा, तो वहां पर ब्रेक को भी आपको इंडेंटेशन फॉलो करना है। तो क्या हो रहा है, मल्टीपल इंडेंटेशन आ रहे हैं, तो इसके लिए पाइथन ने क्या किया गया, दोनों को कंबाइन कर दिया, मिक्स कर दिया। तो देयर यू हैव अ कीवर्ड एलिफ, एल्स एक अलग कीवर्ड है, एलिफ एक अलग कीवर्ड है, लेकिन वो क्या करते हैं, एल्स इफ के आपको कंबाइन कर लेते हैं। यस। ओके सर। सर एक हेलो। अब क्वेश्चन। यहाँ पर क्या होगा, एल्स इफ में अगर थर्ड ऑप्शन है तो ही आपका जो लूप है वो ब्रेक होगा, अगर थर्ड ऑप्शन नहीं है देन यू मे कम बैक टू द सेम मेनू। फॉर एग्जांपल, आई save this code, I come back, थर्ड डाल दूँ, और यहाँ पर मैं जब थर्ड डालता हूँ ऑप्शन, देन ओनली आई एम कमिंग आउट। ओके, अगर मैं थर्ड ऑप्शन नहीं डालूँ, अगर मैं कुछ और ऑप्शन डाल दूँ 1 2 3 के अलावा, फॉर एग्जाम्पल आई पुट अ 4, तो अब क्या होगा, 4 पे वो बाहर नहीं आएगा, फिर से मेनू आपका शो हो जाएगा। फाइन, क्योंकि हमने एल्स के अंदर भी इफ डाला है, और उस इफ में हम चेक करें अगर चॉइस 3 है तो ही हम ब्रेक कर दें। आर यू गेटिंग इट? अगर चॉइस 3 है तो ही हम ब्रेक कर दें। अब इसी को मैं अगर थोड़ा सा चेंज कर दूं, सी द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेंटेशन, मैं क्या करूंगा कि जो ब्रेक है ना, इसको मैं पीछे ले लेता हूँ, सिर्फ एक पीछे लिया मैं, जैसे मैंने एक पीछे लिया, नाउ टेल मी दिस ब्रेक is a part of this if or this if or it is a part of else? एल्स। सर एल्स का पार्ट है। It is a part of else। ठीक है, अब else में क्या हो जाएगा कि आपकी चॉइस 1 2 3 के अलावा अगर कुछ भी है तब भी आप else में हो। ठीक है, 1 2 के अलावा कोई भी अगर आपकी चॉइस है तो आप else में हो, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, मैं इसको सेव कर लूँ पहले कोड को, अब मैं इसको वापस से इंटरप्रेट करता हूँ। पहले क्या हो रहा था, 3 डालने पर ही हमारा प्रोग्राम एग्जिट होता था। ठीक है, यही वाला कोड देखो, अगर मैं 4 डालू 5 डालू कुछ भी, तो योर लूप विल कम बैक, तो 3 के ऊपर ही एग्जिट होता था। अब मैंने अपने प्रोग्राम को सेव किया हो चेंज करके, एंड आई री इंटरप्रेट इट। अब क्या होगा कि मैं 3 के अलावा कुछ और डाल के देखता हूँ, एंड आई चेक वेदर द प्रोग्राम टर्मिनेट्स और नॉट। तो अगर इफ आई पुट 4, तो द प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड। ठीक है, लाइकवाइज अगर मैं 3 डालू तब भी प्रोग्राम टर्मिनेट होगा कि नहीं? होगा सर। फास्ट होगा, क्योंकि ठीक है, एल्स के अंदर ही ब्रेक है ना, 3 के लिए भी आप एल्स में जाओगे। 3 में और 4 में यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि 3 डालने पे आपको मैसेज भी डिस्प्ले होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अगर चॉइस अगर 3 है तो प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, दिस प्रिंट इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द चॉइस इज 3। लेकिन जैसे ही आप एल्स में आते हो तो ब्रेक होना ही है आपका लूप। ओके, तो एल्स में आप कब आओगे, व्हेन योर चॉइस इज नॉट 1 और 2, 1 और 2 के अलावा कोई भी चॉइस है तो यू विल गेट इनटू द एल्स पार्ट। 3 में क्या खाली डिफरेंस आएगा, इन 3 व्हाट हैपेंड, कुछ तो बग आया उसमें, मेरा डिस्प्ले खराब है। Why reinterpret my code? 3 में आपको मैसेज भी डिस्प्ले होगा, दिस इज द लास्ट चॉइस, और प्रोग्राम आपका टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो मैसेज भी डिस्प्ले हुआ और प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ। 3 के अलावा अब अगर आप कुछ भी डालते हो 4 5, तो मैसेज नहीं डिस्प्ले होगा लेकिन प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, मैसेज नहीं डिस्प्ले हुआ, प्रोग्राम टर्मिनेट। ठीक है, तो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट इंडेंटेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये लर्निंग है हमारे लिए यहाँ पर। ठीक है, कि इंडेंटेशन से क्या होता है। अब ये ब्रेक में और पीछे कर लो तो इस तरीके से,
Now, can you tell me a break is a part of what? else if, else sir. while sir loop, elif, No, while break loop, is a part of while. Break is a part of while. तो while में क्या हो रहा है? पहले प्रिंट हो रहा है और फिर प्रिंट होने के बाद में ये सब मेनू प्रिंट होने के बाद में चॉइस के हिसाब से ये सब चीजें हो रही है और फिर उसके बाद में ब्रेक हो जा रहा है. तो दिस इज व्हाट? दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? टेल मी फास्ट. तो while लूप से निकल जाए. निकल जाएगा बिल्कुल. एक ही बार while लूप एग्जीक्यूट होगा. दिस इज एज गुड एज नॉट हैविंग अ while लूप. लेट्स सी. एक बार मेनू आया हमारा, हमको जो काम करना था हमने वो काम किए. फॉर एग्जांपल एडिशन का हमने काम किया. एडिशन डिस्प्ले हुआ and it came out of a loop. Why? Because the last statement of your loop is to break the loop. That's all. The last statement of the loop is to break the loop. तो आपका loop iterate हो ही नहीं रहा है. This break is a part of your while loop. Okay, as you can see over here. Break is a part of your while loop. Are you all understanding it? Indentation का importance समझो. अब मैं क्या Yes करता sir. हूँ, ये ब्रेक को खाली एक टैब स्पेस मार के आगे कर देता हूँ. That's all. आई एम सेविंग माई कोड और मैं अब अपने प्रोग्राम को री इंटरप्रीट करता हूँ. नाउ द लूप विल कीप ऑन आइटरेटिंग. ठीक है. 1 और 2 के अलावा अगर मैं कुछ नंबर डालता हूँ तो ही एग्जिट होगा, वरना एग्जिट नहीं होगा. मल्टीप्लीकेशन इज 200 और फिर वापस से लूप आ गया. तो 1 2 जब तक मैं करते रहूंगा हमारा लूप आते रहेगा, मेनू हमारा डिस्प्ले होते रहेगा. और अगर मैं 3 या 4 ऐसा कुछ डाल दूं देन ओनली इट विल come out of the code. So this is the importance of your indentation. Indentation is very basic, very important to have. Okay. अब पाइथन में एक और इम्पोर्टेंट चीज है. लेट मी गो विद दैट फ्रॉम बिगनिंग इटसेल्फ. हम सर एक स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन अगर वो था. काम कर. हाँ बोलो बोलो. सर जैसे सी में अगर फ्लोटिंग पॉइंट को दो ही डेसिमल बाद दो ही नंबर ये रहता था तो हाँ, पॉइंट टू लिखते थे, तो इसमें क्या करेंगे सर? इसमें भी फॉर्मेटिंग होंगी. आई डू नॉट रिमेम्बर एग्जैक्टली राइट नाउ बट देयर मस्ट बी फॉर्मेटिंग. लेट मी चेक. एक मिनट अभी चेक कर. सर राउंड फंक्शन लगता है. राउंड फंक्शन में राउंड करने के लिए व्हाट ही इज आस्किंग फॉर कि आपको स्पेसिफिक डिजिट तक के ही डेटा डिस्प्ले करना है, आपको राउंड नहीं करना है उसे. ठीक है. आई विल बी लेटिंग यू नो अबाउट दैट. ओके. देन स्ट्रिंग के ऊपर थोड़ा सा हम काम कर लेते हैं. नंबर्स तो यू ऑलरेडी मस्ट बी नोइंग. एंड for string, for example, if I want to compare string, loop के अंदर डालूं. I can go for the third choice. String comparison. हेलो सर. हाँ बेटा. सर थर्ड अभी आप चॉइस उसको में. लूप के अंदर डाल रहे हैं. हाँ बिल्कुल. अगर स्ट्रिंग मतलब कंपेरिजन. उसको छोड़ के और लूप से बाहर लिखना हो तो उसको एंड कैसे करेंगे लूप को? लूप तो यहाँ पर ये कंडीशन पे हम एंड कर रहे हैं. ठीक है. तो ये कंडीशन पे लूप एंड हो जाएगा और इसके बाहर अगर मैं यहाँ पर कोडिंग करता हूँ तो हमारा मेनू का थर्ड चॉइस अगर हम डालेंगे तो थर्ड या 1 2 के अलावा कोई भी चॉइस आएगी तो लूप ब्रेक होगा और लूप ब्रेक होने के बाद में फिर हमारा जो आगे का हिस्सा है वो एग्जीक्यूट होगा. तो फॉर एग्जांपल इफ आई से s1 is my string and I am asking for the first string. Enter string. ठीक है. और एक और स्ट्रिंग मैं यूजर से लेता हूँ h2. but this is going a part of your while loop. तो while loop आपका यहाँ पर चलता रहेगा.
ये चॉइस के बाद में, मेनू के बाद में फिर ये काम होगा, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड। हमको ये वाइल लूप के बाहर लेना है ना, तो हमको ऐसे करना है। So S1 and S2, two strings I am taking, and I want to compare these two strings. So what I can do, I can directly सर दोनों compare in जगह Python. फर्स्ट है सर। S1 S2 है ना बेटा, चेंज नहीं सेकंड होगी वाले कि? में सेकंड स्ट्रिंग सर, इंटर सेकंड सेकंड अरे अच्छा, ये हाँ, थोड़ा बच्चा वाला काम तुम लोग कर लिया करो, बहुत काम करवाते हो तुम लोग। So enter second string, and then I can directly compare if S1 equals H2. So I can print similar, and else I would say print dissimilar. ठीक है, चलो ये कर लेते हैं। मैंने एक्चुअली यहाँ पर थर्ड ऑप्शन डाल दिया था, लेकिन फिर आप लोग बोले लूप के बाहर करके बताओ, तो एक ही बार होगा, याद रखना। फिर हम लोग बाद में इसको भी चेंज करते, चलो कोई दिक्कत नहीं। जब तक कोडिंग का साथ है तब तक सब ठीक। तो आई गो फॉर द फर्स्ट ऑप्शन। नहीं, मुझे इसमें कोई ऑप्शन में नहीं जाना है, लेकिन ठीक है, चलो एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर फिर हम ऑप्शन में फिर से मेन्यू डिस्प्ले होते रहेगा। अब मैं थर्ड से आता हूँ, तो फिर मैं देखो मैं बाहर आ गया वाइल लूप के, तो वाइल लूप के बाहर अब हम पूछ रहे एंटर द फर्स्ट स्ट्रिंग से AIKTC, एंड माय सेकंड स्ट्रिंग से CO, एंड इट सेज इट इज डिसिमिलर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि ये जो स्ट्रिंग ऑपरेशन है ना कंपैरिजन का, ये भी मुझे मेनू का हिस्सा बनाना है। तो दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग अर्लियर। So this becomes my fourth option, exit, and before exit, I will be having the third option as the string comparison. String comparison, ठीक है। और अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। I will be writing here elif. My choice is 3. In that case, I will be doing this part. ओके, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और ये जो एलिफ है यहाँ पर डाल देता हूँ। ये थोड़ा सा सब करना पड़ेगा, नो इशू, फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। और ये एल्स को सिंप्लीफाई कर देते हैं, और ये एल्स के अंदर ये चॉइस हटा है। ओके फाइन, ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड क्लीन कोड। अब थोड़ा क्लीन कोड हो गया है, एंड नाउ वी शुड हैव 4 options. So yes, we got 4 options. I go for the third option, and I say that my two strings are this, and it says similar, and it comes back to our menu. Again, go for that AIKTC and AIKC, and it says dissimilar. Okay, so again, your comparison is case sensitive. So this is how you can compare the two strings very easily with the help of equal operator, or sorry, equality operator, with the help of इक्वलिटी ऑपरेटर। दो इक्वल साइन डाल दो आप, तो जैसे आप नंबर को कंपेयर करते हो, वैसे ही आप यहाँ पर स्ट्रिंग्स को भी कंपेयर कर रहे हो। So there are a lot of string you can say methods, because it's a class ना, int की क्लास है, float की क्लास है, str की भी क्लास है। तो जब क्लास है तो क्लास में मेथड्स भी आपके होते हैं, तो आप ये ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हो उनके मेथड्स को कॉल करने के लिए, एंड देन यू कैन कंप्लीट योर टास्क। फॉर एग्जांपल, स्ट्रिंग के अंदर एक बढ़िया सी चीज पाइथन में सपोर्टेड है, विच इज कॉल्ड एज स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग। ठीक है, स्लाइसिंग इंडेक्सिंग क्या होती है, क्या मुझे अगर स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से बाहर आ जाऊँ, नहीं मैं इस पे भी नहीं आता हूँ, मैं सीधा अपने टर्मिनल पे जाता हूँ। I come out of this option, and what I do, I start my Python interpreter here itself. स्ट्रिंग के अंदर मैं आपको क्या बताया था, स्लाइसिंग वाला बहुत एक मस्त फंडा है।
पाइथन के अंदर। तो एस में एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर मैंने डेटा डाला AIKTC। कैन यू ऑल सी दिस, राइट? यस सर। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे डिस्प्ले करना है पूरी स्क्रीन तो मैं एस को डिस्प्ले करूंगा। अब मैं प्रिंट एस करूँ या यहाँ पर एस भी कर दूं तो वही काम हो जाएगा, या प्रिंट एस भी करूँ तो वही काम हो जाएगा। एडिटर में जब मैं करूंगा तो मुझे प्रिंट एस करना पड़ेगा। प्रिंट एस आई मीन टू से लाइक दिस, प्रिंट और फिर ब्रैकेट में एस। ठीक है, तो एस का कंटेंट डिस्प्ले हो जाएगा। या फिर मैं कमांड लाइन पे हूँ तो मैं डायरेक्टली एस ऐसे कर दूंगा। तो ऐसा डिफरेंस देखो, जब मैं खाली एस लिखता हूँ तो सिंगल कोट के साथ में डिस्प्ले होता है, और प्रिंट करता हूँ तो सिंगल कोट हट जाता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। Now if I want to display the part of my string, for example the first character, ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर, तो यहाँ पर मैं इंडेक्सिंग यूज कर सकता हूँ। तो s इन स्क्वायर ब्रैकेट 0, तो क्या हुआ, फर्स्ट कैरेक्टर डिस्प्ले हुआ। लाइक वाइज आई कैन मेक यूज ऑफ प्रिंट ऑल्सो फॉर डिस्प्लेइंग द फर्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, तो इंडेक्सिंग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इंडेक्सिंग यूज करेंगे। पाइथन के अंदर एक अच्छी बात क्या है, अगर मुझे पहले दो कैरेक्टर चाहिए, पहला कैरेक्टर और दूसरा कैरेक्टर, तो आई कैन ऑल्सो स्पेसिफाई अ रेंज। आई रिपीट, आई कैन स्पेसिफाई अ रेंज। ठीक है, तो आई वुड से कि भाई स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट कैरेक्टर 0 एंड कोलन डालता हूँ एक, और मैं बोलता हूँ लास्ट कैरेक्टर मेरा 2। नाउ सी व्हाट्स हैपनिंग, this is called as a start value and this is called as a end value. I repeat, this is called as a start value, this is called as a end value. So this is the index of my starting character from where I want to start the display, and this is the index value of a character before which I want to stop. Before which I want to stop. तो अगर मेरा एंड वैल्यू 2 है तो मैं इंडेक्स वैल्यू 1 तक जाऊंगा। अगर मेरी एंड वैल्यू 3 है तो इंडेक्स वैल्यू 2 तक जाएंगे। अगर एंड वैल्यू 5 है तो इंडेक्स वैल्यू 4 तक के जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल इफ आई राइट लाइक दिस एंड वैल्यू 4, so it will go up to the index value 3। ठीक है, a की इंडेक्स वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2 एंड देन 3। so t is at 3। ठीक है, likewise if I say start with 0, I do not know the end value and I want to go till the end, so I will not specify the end value, so it will display the entire string। what it will display? It will display the entire string। समझ में आ रहा है सबको? प्लीज कीप ऑन रिस्पॉन्डिंग। टेक्स्ट या तो यस चैट सर। बॉक्स पे मैसेज डालते जाओ या तो बोलो। रिमेनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज इम्पोर्टेंट। हाँ, स्लाइसिंग है, बहुत सिंपल चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े काम हो जाते हैं इससे। क्या बड़े काम होते हैं अभी दिखाऊंगा मैं आपको। तो अब इसी के अंदर पाइथन में एक और ऑप्शन भी है। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है स्टार्ट वैल्यू, फिर भाई डालो कोलन, और फिर बताओ एंड वैल्यू। फॉर एग्जांपल एंड वैल्यू मैं बता देता हूँ उसे 4, और इसके बाद में एक और कोलन डाल के आप एक थर्ड वैल्यू भी स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इन शॉर्ट सिंटेक्स क्या हुआ कि मेरी एक स्ट्रिंग है, उसका मैं नाम लिखूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट, स्टार्ट वैल्यू डालूंगा, स्टार्ट वैल्यू, कोलन, एंड वैल्यू डालूंगा, कोलन, समथिंग कॉल्ड एज इंटरवल, समथिंग कॉल्ड एज इंटरवल। ठीक है, इंटरवल को आप स्टेप वैल्यू भी बोलते हो, इंटरवल या फिर सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बोल दो, समथिंग कॉल्ड एज स्टेप। ठीक है, तीन पॉसिबिलिटी यहाँ पर, तीन ऑप्शन है मेरे पास। स्ट्रिंग का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट में स्टार्ट वैल्यू जो कि इंडेक्स वैल्यू देंगी, कोलन, एंड वैल्यू जो कि वैल्यू के इंडेक्स वैल्यू के पहले तक के कैरेक्टर पे हम जाएंगे, कोलन, स्टेप या फिर इंटरवल। इंटरवल बाय डिफॉल्ट होता है 1, एंड वैल्यू बाय डिफॉल्ट होती है आपका लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। मेरे वर्ड्स को गौर से सुनो, नोट करते जाओ अगर जरूरत पड़ती है तो। इंडेक्स वैल्यू, स्टेप वैल्यू बाय डिफॉल्ट होती है 1, एंड वैल्यू बाय डिफॉल्ट होती है आपकी लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, और स्टार्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट होती है 0। ठीक है, तो स्टार्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट इज 0। फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट वैल्यू कोई ना दी और मैं डायरेक्टली चला गया 3 पे एंड वैल्यू के लिए, सॉरी एस एस है, स्ट्रिंग एस। देखो स्टार्ट वैल्यू मैंने कुछ भी नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट वैल्यू क्या लिया? 0। अगर मैं स्टार्ट वैल्यू देता हूँ कुछ, फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट वैल्यू देता हूँ 1 और मैं एंड वैल्यू नहीं देता हूँ, ठीक है,
व्हाट विल हैपन, एंड तक के जाएंगे, तो लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग तक के जाएंगे, ठीक है। और कोलन डालना जरूरी है, अगर कोलन में डालूंगा नहीं तो फिर पाइथन को समझ में नहीं आएगा। पाइथन विल इंटरप्रेट कि भाई एक ही कैरेक्टर चाहिए, तो द कैरेक्टर एट द इंडेक्स वैल्यू 1 विल बी डिस्प्लेड हियर, ठीक है। बट व्हाट आई वांट टू से टू द पाइथन कि आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम 1 इंडेक्स वैल्यू एंड आई नीड टू गो टिल द लेंथ ऑफ माय स्ट्रिंग, टिल द एंड ऑफ माय स्ट्रिंग। आई डू नॉट नो कि भाई लास्ट में क्या इंडेक्स वैल्यू है, तो आई विल सिंपली से कोलन। So it will start from a specific index and it will go to the end of the string, ठीक है। तो start value की डिफॉल्ट है 0, end value की डिफॉल्ट है length of a string और step value की डिफॉल्ट है 1, ठीक है। अब देखो अगर मैं सिर्फ कोलन कोलन डाल दूं, तो मैंने स्टार्ट वैल्यू नहीं डाला तो डिफॉल्ट क्या लेगा 0। अगर मैं एंड वैल्यू भी ना डालू तो डिफॉल्ट हो जाएगा लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। और मैं अगर लास्ट में स्टेप वैल्यू भी ना डालू तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा 1। तो इट मींस व्हाट, आई एम डिस्प्लेइंग द एंटायर स्ट्रिंग। सी देयर केयरफुली, आई एम डिस्प्लेइंग द एंटायर स्ट्रिंग। नाउ इफ आई चेंज द इंटर स्टेप वैल्यू, आई से 2, तो स्टेप वैल्यू क्या होता है पता है, स्टार्ट वैल्यू से स्टार्ट करेगा, एंड वैल्यू -1 पे खत्म करेगा। और बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू 1 होती है, तो जो जंपिंग होती है ना वो 1 कैरेक्टर से होती है। तो स्टार्ट वैल्यू में 0 है इंडेक्स, अब जो सेकंड इंडेक्स वैल्यू देंगी वो 1 होंगी। तो बेसिकली स्टेप इज समथिंग लाइक विच इज एडेड। तो इंडेक्स पे 0 है, फिर 1 ऐड होगा, फिर 1 पे 1 ऐड होगा 2 बनेगा, फिर 2 पे 1 ऐड होगा 3 बनेगा। तो हर कैरेक्टर को डिस्प्ले करेंगे। अगर मैंने स्टेप वैल्यू दे दिया 2, तो वहां पर जो जंपिंग है, जो एडिशन है ना 0th इंडेक्स के बाद में, तो 0th इंडेक्स का कैरेक्टर डिस्प्ले होगा। और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो 0+2 पे जो है वो डिस्प्ले होगा। फिर उसके नेक्स्ट पे क्या होगा, 0+2 is 2, फिर 2+2 पे जो है वो डिस्प्ले। लेट अस सी, देखो ए के सी, ए इज एट 0, फिर 0+2 करेंगे तो क्या मिलेगा 2, तो 0 1 2, देन के इज एट 2 इंडेक्स पोजीशन, फिर 2+2 करेंगे तो क्या होगा 4, तो 0 1 2 3 4, देन सी इज एट 4th इंडेक्स पोजीशन। तो ए के सी ऐसा आउटपुट आया। आर यू ऑल विथ मी? यस सर। ओके ओके। अभी इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। वो क्या है, देखो यहाँ पर अगर मैं जो स्टेप वैल्यू है वो अगर बढ़ा दूं 3 कर दूं, तो 3 के हिसाब से स्टेप चलेगा। तो वो जो लास्ट का जो ए आएगा, ए के बाद में फिर 3 ऐड होंगे 0 में, तो आप टी पे जाओगे और टी के बाद में फिर कुछ और आएंगे नहीं 3 ऐड करने। तो ए और टी ये डिस्प्ले हो गया। लाइकवाइज यू कैन गो फॉर अ स्टेप वैल्यू ऑफ 4, तो ए और सी डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप स्टेप वैल्यू ऑफ 5 बोलते हो तो देखो क्या होता है, लेट्स सी, ओनली ए, क्योंकि ए की इंडेक्स पोजीशन में अगर 5 ऐड करोगे तो आप स्ट्रिंग के बाहर जा रहे हो, आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो खाली ए डिस्प्ले होगा। इफ आई डिस्प्ले विथ 1, I will get the entire string. Interestingly, if I say a step value which is negative, -1, see here carefully. I say a step value of -1, ठीक है, and I hit an enter key. See what's happening? रिवर्स Tell me what's happening. रिवर्स स्ट्रिंग क्या हुआ? रिवर्स उसका स्ट्रिंग रिवर्स डिस्प्ले हुआ। उसका क्या हुआ? रिवर्स डिस्प्ले हुआ। इसका ये मतलब हुआ कि भाई अगर मेरी स्ट्रिंग है AIKTC is a great place to learn, दिस इज माई स्ट्रिंग, ठीक है। ये स्ट्रिंग को अगर मुझे डिस्प्ले करना है, मैं एस डालूंगा, डिस्प्ले करेगा। ये स्ट्रिंग का अगर मुझे रिवर्स डिस्प्ले करना है ना, तो पाइथन में कितना सिंपल है, दो कोलन मारा, -1 किया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया, डन। यू आर गेटिंग द रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। दूसरी लैंग्वेजेस में आपको या तो पूरा फंक्शन बनाओ अपना, या तो आप लाइब्रेरी फंक्शन को यूज करो। इन पाइथन ओनली विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग you can get the, ठीक है, you did not have to do anything extra, do anything special। अब मुझे अगर पैलिंड्रोम चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, ओरिजिनल स्ट्रिंग और ये जो रिवर्स स्ट्रिंग है दोनों को कंपेयर कर लूंगा। अगर दोनों सेम है पैलिंड्रोम, अगर नहीं सेम है तो नॉट पैलिंड्रोम। फॉर एग्जांपल, इफ s
डबल इक्वल्स एस कोलन -1. लेट्स सी होता है कि नहीं. आई वुड से प्रिंट पैलिन खाली डाल दो. एल्स आई वुड से प्रिंट नॉट पैलिन. क्या है आउटपुट? नॉट पैलिन. ठीक है, क्योंकि वो पैलिंड्रोम नहीं है. अब मैं एस के अंदर कुछ ऐसी वैल्यू डाल देता हूँ जो कि पैलिंड्रोम हो. मैडम ठीक है, एंड आई एग्जीक्यूट माय इफ या मैं प्रिंट पैलिन and else print not val. I stop my input and the output is palin. So simple. मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग और ये मेरी रिवर्स स्ट्रिंग, खाली दोनों को मुझे कंपेयर कर देना. तो एक ही स्टेटमेंट में रिवर्स फाइंड आउट भी कर लिया, रिवर्स ले भी लिया, ओरिजिनल को रिवर्स से कंपेयर भी कर दिया, कंपेयर करने के बाद डिस्प्ले भी कर दिया कि भाई वो पैलिंड्रोम है कि नहीं पैलिंड्रोम. ठीक है, it is as simple as that. Fine. So this is how Python makes your life so easy as a programmer. You can do so many things only with very small number of lines of code. The only requirement is what? You should know how to use it, how to do it. Okay? So you have a very useful concept of slicing and indexing. इसको हम बोलते क्या है? स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग. तो स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग यूज करके आप स्ट्रिंग के ऊपर बहुत कुछ कर सकते हो. यू कैन फाइंड द पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग इधर फ्रॉम द फ्रंट और इधर फ्रॉम द बैक और इधर फ्रॉम द मिडल. जहां से भी आपको स्ट्रिंग का जो भी हिस्सा चाहिए वो आप हिस्सा निकाल सकते हो. यू कैन फाइंड आउट सब स्ट्रिंग एंड सो ऑन. इंटरेस्टिंगली आपको एक और बात बताता हूँ मैं. देखो अब ये एस के अंदर एक स्ट्रिंग है मैडम. ठीक है, और S1 में मैं एक स्ट्रिंग डालता हूँ. Madam is present. तो S स्ट्रिंग है मैडम, S1 में है मैडम इज प्रेजेंट. अब मुझे अगर सब स्ट्रिंग के ऊपर काम कर रहा है, मुझे चेक करना है कि वेदर S is a substring of S1. So in Python you have a very simple way of doing this. मैं if statement यूज करूंगा. I would say if S in S1. इन कीवर्ड खाली यूज करना है, इन. और ये इन इतना यूजफुल कीवर्ड है, कई जगह इसका यूज हो जाता है. तो आई वुड से एस इन S1 आई वुड प्रिंट यस एल्स आई वुड से प्रिंट. हाँ बेटा चलो, मेरा भी जुम्मा है, मैं भी जा रहा हूँ. जस्ट अ मिनट, बस खत्म कर दें. डन. यस इट इज देयर. इट्स अ सब स्ट्रिंग. अगर मैडम मैं एस का कंटेंट अगर चेंज कर दूं, वहां पर सर कर दूं और मैं S1 है मैडम इज प्रेजेंट, तो अब पूरा चेंज हो जाएगा. तो S इज नॉट इन S1. प्रिंट यस एल्स print no. The output should be no. Let's check. Yes, the output is no. ठीक है. So it is so simple even to check for the substring. और ये substring वाला कोड अगर आप C++ में करने जाओ तो फिर हालत खराब है आपकी. आपको खुद का पूरा एक फंक्शन लिखना है and that too quite difficult. Okay. So this is how you can do lot of stuff into Python. So it is so simple to do. इसमें अगर कहाँ पर भी किसको कोई इश्यू है प्लीज लेट मी नो. मीनवाइल मैं आप लोगों को शेयर करके देता हूँ अटेंडेंस लिंक. जस्ट अ मिनट. हाँ,
सर पाइथन भी केस सेंसिटिव है क्या? हाँ फिर चेक किए ना अभी हमने. Okay, I given the link for the attendance into the chat box. Please follow that form link for your attendance. And since yes, it is Friday, so we all need to leave. If there is no question, so I end the session. And in the next session के पहले आप लोग को फिर मैं बता दूं, आप लोग को अपना मिनी प्रोजेक्ट का टाइटल मुझे सेंड करना है, ठीक है, by next Wednesday. And our next session is on next Wednesday. Till then, enjoy coding, enjoy programming. Thank you. I'm ending the session. Let me stop the meeting first. Stop recording.